Hello, ma'am. Good evening. Am I audible? गुड इवनिंग। Hello, ma'am. हेलो जी, बस 5 मिनट वेट करो सर। अभी हमारे साथ जुड़ते हैं। गुड इवनिंग सर। हेलो गुड इवनिंग मनीषा जी। कैसे हो सर? फाइन फाइन। सर आकाश कुमार आज हमारे साथ हैं इंटरव्यू के लिए। Hello, sir. हेलो हाय आकाश, गुड इवनिंग। Good evening, बस sir. 2 मिनट्स है ना, मैं बस आप ज्वाइन कर रहा हूँ। मैं वैसे ज्वाइन कर लिया है। इन 2 मिनट्स वील स्टार्ट द इंटरव्यू, है ना। Okay, sir. इंटरव्यू भी रहेगा ही। आई विल जस्ट आस्क यू क्वेश्चंस दैट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर डैफ। Okay, sir. बाकी कॉन्वर्जेशन में जैसे जैसे कुछ क्वेश्चंस मेरे को भी स्ट्राइक करते हैं जो पूछे जा सकते हैं, है ना, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है सर। एंड में आप जो भी आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज होंगी आप मेरे से पूछ सकते हो किसी भी चीज़ से ओके। रिलेटेड। ओके सर। ओके आकाश।
Hi Akash. So should we start the interview? Yes, sir. So will you be switching on your video? Yes, sir. Hello, hi Akash. Good evening. How are you? Good evening, sir. Fine, sir. Fine. Okay. So your interview medium is going to be English or Hindi? Sir, English. English. Okay. So first of all, Akash, you have done your engineering from NIT Jalandhar, Yes, sir. mechanical engineering. So and you've got a decent percentage as well. So what do you think the role of engineers is in our country today? So, like in the sunrise sector, the role of engineers are, sir, like very much prominent today, such as, sir, in especially in biotechnology, AI, and also in, sir, like solar energy also, sir, and in semiconductors also, like, sir, in designing semiconductors, we need electrical engineers, sir. Okay, so you have specified about, sunrise sectors, but not in general. Yes, sir. You feel in general is the role of an engineer in a country? So in general, sir, like engineers like help in, sir, various overall economy, sir. So Okay. for example, like in agriculture, the building of dams, barrages, engineers are like required. Sir, in healthcare sector also, uh, making medical devices, engineers are required. Sir, in maintaining as well as like, sir, social cohesion also. If engineers are working and producing like GM crops, then the food security will be achieved, and we can avoid riots or any other violence type of activities. So, Okay, you stated all the benefits of engineering apart from mechanical. yes, sorry, sir. But nevertheless, okay, so building on that, engineers play such a huge role. Why do you feel then the need to, pursue the civil services? Sir, like, sir, my motivation was always to serve civil services. But when I was in job, sir, I couldn't, like, I thought that I will be doing job and also simultaneously will be preparing for my civil services. But sir, the job required both, sir, high mental and physical presence, sir. So I thought it will be disservice to my organization because my organization productivity will be getting lower. So I thought, sir, I should leave my job and then prepare for civil service. Okay, so you feel that if you are pursuing two things simultaneously, then you will not be able to perform that great in one of the things. Yes, sir, because sir, that thing was requiring like too much physical and mental presence, sir. But Akash, I will tell you from my experience in the services, you're going to be managing 50 things simultaneously, from elections to distribution of compensation after the floods, to formation of some village level committees, to taking care of the entirety of your subdivision or your district for that matter. So then you will not be able to perform in one task well if you are, pursuing another task. So how will that work? No, sir. It's not the issue of task, sir, because that job was like, sir, very different, sir. I have to go wake up in the morning at 7, then I have to come at night at around 8 o'clock or 9 o'clock, and then study, sir. For study part, I'm saying like either of the two was getting affected, sir. That's why I was saying. Okay, Akash. So I had the chance to go through your DAF and Yes, I have sir. two questions. So you chose your college in Punjab, Yes, sir. and but I can see that you've placed it last in the zone. You know, Oh, in the cadre, yes, sir. yeah, why so? Sir, cadre preference I have thought due to, sir, by thinking of, sir, like which cadre provides like, sir, multi-dimensional roles and also, sir, career growth. Every cadre provides multidimensional growth and career growth, Prakash. Sir, some cities, some matlab, like, sir, some states which are very large, like economically more developed, they have more roles. Like I thought, sir. That's why I have. Job of a civil servant is to uplift the masses. So you'll Yes, be sir. in a cadre or in a city where development is low, because the place where development is high, the role of civil services is actually decreasing. When all the facilities have already reached the people, what role will you play? So I will work in whichever department I am posted. So it doesn't matter, sir. Okay.
So, considering your service preferences, you placed IPS pretty low. Why are you so diffident towards the police? No, sir, IPS is also a very respectable service, sir. But I thought, sir, I would be more effective in, sir, other jobs. Why Uh, so? Because, sir, I think that, sir, as I come from engineering background, I am more like, sir, adaptive in data-driven and developmental planning things, sir, rather than, sir, field level operational policing activities, sir. So then IRS, it is all about the revenue. I don't think it will, your background will have a big difference over there. Sir, in IRS there are also, sir, like international compliance of, sir, this tax evasion. There are also, sir, partnership with ED also, sir, in conducting raids, and also, sir, data analysis to check monitoring of compliance. Okay. So Akash, I'll give you a, case study. Okay, sir. So you're in a village where there is nothing. Okay. School, there is no college. है ना? Okay. So basically, there is no school, there is no hospital, and there is no road. Okay, sir. You are the DM of that area, or you're the SDM of that subdivision. You have funds only for one thing. Which out of the three will you be able to, put your mind towards? What will you do first? School, hospital, or the road? Hospital, road, or school? Three Hmm. things, now. Sir, first of all, I will build, sir, hospitals. Okay, why so? So because I believe, sir, health is the most important factor in any human's life being, sir. If health is all well, then humans can achieve, sir, their fullest potential, sir. Because health is, sir, I think the single most barrier in achieving any meaningful activity in life, sir. Okay, but if there is no road, how will you bring the materials to build the hospital? Sir, material can be carried, sir, through, like, through, sir, we have, sir, all terrain vehicles which can carry, sir. Okay, so would it have been better if you built a road first and then you made the hospital? Sir, health is the, sir, first priority, like, sir. It will Okay. enable. Okay. So I can see in your achievements that you've been, performing well academically. You've even won a chemistry Olympiad. Yes, sir, in class 11th. So I still feel that you would have been better suited as an engineer over the civil services, with your background in chemistry and all. So what do Sir, you think? I also find science and reasoning very, like, very captivating and, sir, very interesting for me. But I think, sir, I will be able to transfer these skills in my civil services also, sir, very effectively. Okay. Okay, Akash, what do you write about on Quora? Sir, I write about, sir, like, uh, first, initially, sir, I write about, like, initially I wrote about, sir, like, on JE preparations and these things. Then I wrote about social media, some philosophy things such as, intellectual obesity, existentialism themes, these type of things, sir. Okay, so what did you write about social media? Sir, I recently I said write about, like, sir, how social media uh, takes our time and takes our times like a thief, and we also don't understand it. Like, how is it taking our time? So, like, is it reducing our lives? Social media, Okay. because, sir, it is like diluting the time, sir, and we are not recognizing it. Isn't Quora a form of social media? Mm, it's like social media, but, sir, See, there are but comment generally, votes. So how is it different from Instagram or Facebook for that? so it's mainly based for, sir, writing and reviewing content of each other rather than, sir, audio and video content. It is mainly written only, sir. Okay, so you feel that written content is more, less time consuming than audio or visual media. The written content, I think, sir, it's more engaging to read also and more beneficial to write also. So, like, it also enables a clarity in our thinking as well as, sir, also, like, provide some information or new things to others also, sir, which they O- can, like, read in their own pace and their own timings. Okay. Okay, so Akash, what do you feel is the impact of PUBG on the younger generation? So PUBG, PUBG is also, like, sir, it also promotes dopamine addiction in children.
So which later promotes attention deficit, and also sir the new term brain rot also, sir. Also, sir, it also have resulted in sir financial losses. Children are buying sir extra coupons from their father's money, and Okay. also it sir leads to like sir hampering of studies also sir of children. But Akash, you've been organizing PUBG tournaments. Yes, sir. So don't you feel that it was detrimental while you were in your college? Because then students wouldn't have been able to focus on studies or brain rot, as you call it. It would have been detrimental if we play beyond a certain limit, sir. Okay. But if like sir these online games, if we play in a certain limit and in certain like not excessive, sir, then I think it would be also a fun activity, sir, and entertainment also, sir. Okay. Akash, what do you feel are the five biggest problems that Bihar faces today? So first of all, floods, sir. Okay. Second is health. Third is o- education. Fourth are industries. And fifth is women empowerment, sir. Okay. Can you elaborate a bit? So floods, like almost 70% of area is grappling with flood problems, sir. Recently, this year also, like as I was here, I saw that sir, three times flood came, sir, in just a span of 3 months. Okay. Sir, in the case of women, sir, in my Bhojpuri region, sir, where this Sonpur is situated, sir, women are like sir marginally are very much marginalized in economic sphere, in political, in every field, sir. And sir, in health, like sir, we don't have very good district hospitals also, sir, here. And even our primary hospitals, which are built around blocks and villages, so itself, I think, sir, it doesn't have all the basic facilities, all the primary healthcare facilities, sir. Okay. And in education, sir, I think, sir, government schools are, sir, there are large number of absenteeism going on. Students are not coming. Okay. So absenteeism, so you feel that students are not coming to government schools. So what will you do to help, increase the student attendance in schools? Sir, I will, sir, for like promoting students' attendance, I will give them, sir, one thing could be done, like, sir, giving them some student kit, a bag in which there are books, geometry box, which will motivate them to come. First can be done like this. The case, then we would have already provided because funds are always scarce in a government setting. We have limited resources. You cannot just lure students into coming to school. What other solutions do you have? Other solutions can be, sir, I can, with the help of teachers, I can, like, they can go and see why the students are not coming. They can ask, talk to parents, persuade them. There's a lot of problem of teacher absenteeism also in schools. Yes, sir. Another thing we can do, like, sir, we can, sir, organize some camps, awareness camps, drives in the village. Okay. We can, like, an SDM can go there, or local leaders can be there. Some programs could be like with associated with that camps could be organized so that villagers come and see what is happening there, sir. Okay. Okay, Akash. So can you tell me who is your favorite chess player? So right now, I think Sir Magnus Carlsen. Okay. Why so? So because he is good in all the formats of chess, sir. Whether it is classical, bullet, 3+0, sir, rapid, he's good in all the formats, sir. Okay, so what do you think is his, biggest strategy that helps him win games? Or one of the strategies, perhaps? I think sir, mastering endgame in chess is Okay. one of the biggest strategies, sir. Because sir, endgame requires a lot of calculations and it cannot be studied all, sir. Like openings can be studied too much in depth, but endgame we have to play on our own, sir. Okay, he has a habit of unsettling players. He comes 15, 20 minutes late to Yes, games. sir. Yes, That sir. logical impact on the people. So, do you think that it is sportsmanlike conduct, not respecting the opponent enough? No, sir. I believe he has some issues with his time management, sir.
maybe some event or where he not always does that, sir. I Pretty think regular so sometimes. scheduling, or even if it is so, then he should be more punctual in the games, or he should So, be playing so. sir, he tries to be punctual. I think it was some event miss or some he was not informed of the time. Something he was saying also in the interview, sir. Sometimes. Okay, but if you check his record, he must have done it more than 10 times in almost all. Mm, maybe, sir, he needs to like improve these things. Okay. So have you heard about Deep Blue? Yes, sir. It was the chess engine which was developed earlier, sir. Okay. Who did Deep Blue play against? So Gary Kasparov. Who won the series? So Deep Blue. First time, sir, engine defeated humans. Okay. Who won the first match? Sorry, sir. I'm not aware of all the matches. Okay. है ना? So how do you feel that you will be able to inculcate your engineering background into the services? First, my sir, technical skills like recent boom of AI and on these drone technologies and all these data analysis, Okay. blockchain can be used in administration, so daily administration. Hmm. Sir, and also engineering gives us skills of analytical thinking and problem solving, which sir, is an essential part of sir, administration. Okay. So Akash, you've also had the charge of head of mess committee. It Yes, sir. What, sir? is it at the college level? Yes, sir, in the third year. So what lessons have you learned from your experience? So first of all, persuasion was the important lesson I learned because students will always complain about mess members that they are not preparing their choice of food. So I always have to mediate between them. Second will be like financial management also, sir, because I have to see whether the rates are economical for students and whether we are procuring at the lowest rate from nearby mandis, such things. Okay. And finally, Akash, one thing, what is, one of the few things that, if you were in Sonepur and you want to make it, as a big tourist hub, so what changes or, what things will you do? Sir, as Sonpur is known for Asia's largest cattle fair, Okay. Sonpur Mela. Yes, sir. So to revive, sir, to revive it, I will think in sir like first of all making tourism infrastructure nearby places. Then, sir, I will think of like sir getting tie-ups with Make My Trip and these organizations by organizing sir more folk theaters, folk song of Bihar, so that more international tourists can be persuaded to come here, sir. Like they are done in Pushkar Festival also, sir. International tourists are so much there, sir. Third weekend, sir. Hmm, चलो कोई बात नहीं, that's all right. okay, sir. चलो ठीक है आकाश, है ना? आई हैव आस्क्ड जो क्वेश्चंस मेरे को लग रहा था कुड बी आस्क्ड। अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ कुछ इश्यूज जो मुझे लगे। वैसे तो यू आर डूइंग गुड, ठीक है ना? आपको पता है, यू आर वेल वर्स्ड, बट कुछ चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी है इंटरव्यू में, है ना? Yes, sir. जैसे आप मतलब कुछ क्वेश्चंस में आपको पता है कि आपसे क्वेश्चन करना ही है। जैसे पबजी वाला है, अगर मैंने पबजी बोला तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैंने डैफ में लिखा है और मैं ऑर्गेनाइज कराता हूँ। जी सर, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक स्टार्ट करो आपसे, क्योंकि अगर आप उसकी बेइज्जती कर दोगे और आप वही कराते थे तो आप उसमें फंस जाओगे ठीक है सर। ना। जैसे अगर आपने बोला कि नहीं पबजी से टाइम वेस्ट होता है, बड़ा खराब है, ये है वो है ना? आप अगर बोलो कि जी मैं कराता ही था पबजी, तो फिर वो बिल्कुल ही उल्टी स्टेटमेंट्स हो गई आपकी। आप बोलो कि नहीं सर, ठीक है, काफ़ी अच्छा टाइम उससे है जो कई बार पास हो सकता है, रिलैक्स हो सकता है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो सकती है। तो ऐसे करके आप उसको बिल्ड करो, पर और साथ में क्लॉज खुद ही लगा दो जो आपने बाद में लगाया कि भाई लिमिट में। आप बोलो कि यस सर। होना चाहिए, पबजी का सिर्फ नुकसान है कि वो लिमिट के बाहर लोग खेलने लग जाते हैं। अगर वो कंट्रोल कर लिया देन दैट्स ऑल राइट। फिर उसके बाद जब फिर आपसे वो पूछेगा ही नहीं कि आपने पबजी ऑर्गेनाइज कराया, क्योंकि आपने पहले ही एक वेल राउंडेड आंसर दे दिया, है ना? ओके। नंबर टू, एक है कि आपने ना, जैसे आपके आंसर्स में स्टैट्स नहीं है अभी, यस सर।
मैंने आपको बोला आप 5 प्रॉब्लम्स बताओ बिहार की, आपने बोला हेल्थ, एजुकेशन, ये वो ये, आपने सिर्फ पॉइंट्स रीड आउट कर जी दिए। सर, मैंने अभी इकोनॉमिक वाला प्रिपेयर नहीं किया है सर। वो मेरे पास मतलब नोट्स हैं सर, बस रिवाइज करना था आपको। इकोनॉमिक ना भी सही, आप जो भी पॉइंट्स है अपने, आप पॉइंट को हमेशा सब्सटैंशिएट करके बताना। ठीक है है सर। ना, कि चाहे परसेंटेज ना भी सही, बोल दो कि सिर्फ द कंडीशंस ऑफ पीएचसीज इज नॉट ग्रेट, साथ में ही वहां पे ऐड कर दो फिर सेकंड पॉइंट। और इससे ना आपको अगले पॉइंट को सोचने का टाइम भी थोड़ा मिल जाता है। ठीक है सर। अगर उंगलियों पे गिना दोगे ये 5 हेडिंग्स, ये तो 10th में भी बच्चा बता देता है ना, हेल्थ यस। में एजुकेशन में दिक्कत है जी, इसमें दिक्कत है ना। और इंजीनियरिंग में आप अपना जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसको थोड़ा होन करो, कि अगर आपसे इंजीनियरिंग का पूछा है तो आप मैकेनिकल का भी एस्पेक्ट लेके आओ, दिखाने के लिए कि आपने जो ग्रेजुएशन करी है वो आपको याद है या आपने पढ़ी है। टेक्निकल पॉइंट्स मत बताओ। बट जैसे वाई आप इंजीनियरिंग से यूपीएससी में आए, तो मैकेनिकल का एग्जांपल देके सब्सटेंशिएट करना। ठीक है सर, प्रिपेयर कर लूँगा। ये एआई है ना, बायोटेक, हेल्थ, फार्मा, मैकेनिकल बिल्कुल ही आउट ऑफ द लूप हो गया। मैकेनिकल को आप लेके आप हम्म, एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंट्स को कितना इंप्रूव कर सकते हैं, उनको सस्ता बना सकते हैं, कुछ भी आप बता दो उसमें। है ना, वो यस। नोट करो कि उसको आपने करना है कहीं से इनकलकेट आंसर मैं में। सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भूल गया है सर। ईवी, पोल्यूशन कंट्रोल करो, बहुत कुछ है, यस। फैक्ट यस। आप कर सकते हो बिल्कुल। और ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, पंजाब आपने बिल्कुल ही डेड लास्ट डाला है, और कॉलेज जी। आप एनआईटी जलंधर ही चूज कर लिया, है ना, वो तो जी। सकते हो। और फिर आपने ऊपर से उसमें cadre की बेइज्जती कर दी, है ना, कि नहीं जी वहाँ पे फिर इतना ग्रोथ का स्कोप नहीं है, करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी नहीं है, सिटी अच्छी नहीं है। ऐसा तो कभी भी नहीं बोलना। आप हमेशा ये मेंटेन करोगे, मेरे को कहीं पे भी डाल दे भाई, मैं वहाँ पे काम करने को राजी हूँ। वो आपने बहुत एंड, जब आपने सारी वो कर दी थी, मतलब क्योंकि हो सकता है यार कि कोई बंदा वहाँ हरियाणा से बैठा हो या कोई पंजाब से ही बैठा हो, जी। जी। आपसे ग्रो करके लग गया हो कभी चीफ सेक्रेटरी, और आज यूपीएससी पैनल में बैठा हो, बोलेगा कैसे नहीं है ग्रोथ पोटेंशियल। तो सर मुझे स्टार्ट उससे करना चाहिए था कि सर आई विल बी हैप्पी, लाइक आई विल बी प्रिविलेज टू सर्व इन एनी कैडर, बट बोलो कि ऐसे। जस्ट आई हैड बीन गिवन एन ऑप्शन टू गिव प्रेफरेंसेस, तो मैंने वो डाल दिया। एंड सर पंजाब, क्योंकि मैं सर पंजाबी में इतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं हूँ एज कम्पेयर टू हिंदी, तो मेरे को लगता है कि वुड हैव बीन अ बेनिफिशियल पॉइंट। बट देन अगेन सर, अगर पंजाब मिल भी जाता है बिकॉज मेरा कॉलेज भी, आई वुड हैव बीन हैप्पी टू सर्व देयर। बस, ये नहीं कि ग्रोथ नहीं है, वो नहीं है, ये सब नहीं। ठीक है सर। वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चेस का भी चलो और अच्छे से कर लो, मैग्नस कार्लसन वाले में भी आप बोल देते, वो उसका टाइम वो लेट नहीं करता, वो उसका साइकोलॉजिकल तरीका ही है कि आगे वाले को इंटिमिडेट कर देता है ताकि वो पैनिक कर जाए आगे वाला। तो मुझे लगता है वो सर जनरल, मतलब वैसा कॉलेज स्टूडेंट की तरह बिहेव करता है, लेट उठ के जाता है, सब ठीक है ऐसा सर, कुछ। मैंने भी स्टडी करी है, वो उसका अच्छा। साइकोलॉजिकल के लिए करता है। तो आप सीधा ही, वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज के लिए ही करता है, एंड आप ट्रुथफुल रहोगे जितना उतना अच्छा है। ठीक है सर। आपने ट्रुथफुली बोला था, वो मुझे अच्छा लगा था, अब मैं भूल गया वो कहाँ था, है ना। और जैसे कोरा वाला क्वेश्चन भी है, आप उस पे सोशल मीडिया बोला कि भाई टाइम डिल्यूट होता है, वो जेन्युइनली कोरा भी सोशल मीडिया ही है ना, और वो भी बंदे पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, मैं भी लिखता था कोरा पे, है ना, मुझे पता है कि वो एक तरह का सोशल मीडिया ही है। उसको बिल्ड कर दो इस तरह से कि सोशल मीडिया के बारे में भी लिखा है, तो उसमें हमेशा एक क्लॉज लगा दिया करो कि इन लिमिट। ठीक है। आप एंड तक तो इस पे ही आगे की रिटर्न मीडिया इज बेटर देन ऑडियो विजुअल। अगर ऐसी बात होती तो किताबें पढ़ते लोग, वीडियोस मूवीज ना देखते, इंस्टाग्राम ही ना चलता फिर, है ना। वो सबको पता है, हमें जब गांव में कोई प्रोग्राम कराना होता है तो हम उनको ऑडियो विजुअल ही दिखाते हैं, उनसे पढ़ा तो जाता नहीं किसी से, है ना। तो ऑडियो विजुअल एनीवेज एक ज्यादा कैप्टिवेटिंग वो है, बट बोलो कि उसमें कंटेंट अजीब अजीब हो गया है, एंड इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह भी यूजफुल है, बट अगर उनको सिर्फ एजुकेशनल या अच्छे पर्पसेस के लिए यूज किया जाए। ठीक है सर। सोशल मीडिया को रूल आउट ना करना, हर एक डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन का अपना पेज है हर सोशल मीडिया पे, इलेक्शन कमीशन का अपना पेज है जिस पे वो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस वगैरह डालते रहते हैं। तो डोंट रूल आउट सोशल मीडिया, है ना, बट उसको साथ साथ थोड़ा वैसे करना। बाकी स्टैटिस्टिक्स अपने बहुत सारे पहले प्रिपेयर करके रखो, ठीक है सर। ये पूछिए आपका आंसर चलता रहे स्टैट्स पे, है ना, ये 70% है जी, ये 60% है, ये 50% है, ऐसे वैसे है। और अगर आपके पास जैसे सोनपुर वाला एंड में हमने पूछा था कि भाई, है ना, कैसे इम्प्रूव करोगे, वहां पे आपने 2 पॉइंट बोले, फिर आपने नंबर 3 बोल दिया, अगर आपको नहीं पता तो 2 पे ही रुक जाओ, है ना, 3 तक पहुंचने ही ना दो बात को। और मैं कहता हूँ बेस्ट है कि नंबर 1 नंबर 2 ना ही बोलो, सीधा पहला पॉइंट, पॉइंट्स। ठीक है सर। है ना, कि कई बार ही होता है कि अब आप फंस गए कि दो ही हैं, अगर आप नंबर 1 नंबर 2 ना बोलते तो 2 पॉइंट भी ठीक ही लग रहे थे। जी सर।
ये छोटी छोटी चीजें हैं यार, है ना, तो इससे हो जाएगा। डीप ब्लू का पहला मैच यार गैरी कैस्परोव भी जीता था, है ना, मैंने ठीक। वो भी फॉलो करता था, तो अभी मुझे। मैंने सर ये इंजन्स का तो देख लिया था सर, लीला और जो भी हम्म। स्टॉक फिश वगैरह हैं, सर इनका तो देख लिया। नहीं चलो ठीक है, आपको पता था, रिस्पेक्टिवली पता था, और आपको जहाँ नहीं पता था आपने बोल दिया मुझे नहीं पता था, दैट इज, है ना, हमने ऐसे ही रखना है। तो अपना कॉन्फिडेंस रखो आंसर्स में। मुझे पता है अभी आपने शुरू ही करी है तैयारी, तो अभी थोड़ा सा रस्टी होता है बंदा, नहीं पता होता। जी मैं सर। इंटरव्यूज में मेरे को पता ही नहीं था, बट ये सारी चीजें धीरे धीरे सीख जाओगे, है ना। स्माइल रखो साथ साथ, एंड अच्छा है आपको अपना पता है सारा कुछ, आपका डैफ भी अच्छा है, क्योंकि आपने कुछ इसमें ऐसा नहीं लिखा जिसके ऊपर बड़ा कुछ क्वेश्चन एकदम से ही आ जाए, है ना। सर फिर मेरे कंपनी का वो पूछ सकते हैं ना, कंपनी में मैंने 3 महीने काम किया था वो। वैसे 3 महीने का वर्क एक्स कोई पूछता नहीं है। क्योंकि सर लार्सन एंड टूब्रो फेमस कंपनी है और मैन्युफैक्चरिंग में सर, इसलिए मैं सोच। मतलब जैसे मैंने डैफ पढ़ा ना, इसमें तो मेरे को LNT दिख भी नहीं रहा, लिखा है क्या आपने कहीं? जी सर, लिखा होगा सर एल। मतलब कई बार ना वो भी नहीं देखते इतना जल्दी, ये मैंने तो वैसे टाइम लगा के पढ़ा था, मेरे को तब भी नहीं दिखा, तो कई बार उनको भी नहीं दिखता। तो या तो आप उसको अपने आंसर्स में बेक इन करो, है ना, कि जैसे LNT है वो जी कंपनी इस चीज में ऐसे कंट्रीब्यूट करती है, आई वाज हैप्पी टू सर्व देयर। और ये कभी मत बोलना कि भाई मेरी दो चीजें करके मेरी प्रोडक्टिविटी कम होती है, वो वाई UPSC वाला भी चेंज करो उसको। अगर आप बोलोगे कि भाई मैं एक चीज करते हुए दूसरी नहीं कर पाया, तो वो शो करेगा कि कल को दो काम आ जाएंगे तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है सर। है ना। मेरी भी 12 12 घंटे की ड्यूटी थी, साथ साथ करा था, साथ साथ निकल गया, तो पॉसिबल है। आप इम्पॉसिबल उसको मत बोलना, तो वो उसी टाइम एक नेगेटिव परसेप्शन बना लेंगे। सर टोन ऐसा रख सकते हैं जैसे सर, लाइक सर अगर मैं दोनों में करता तो डिस सर्विस होती सर, ऑर्गेनाइज प्रोडक्टिविटी मेरी कम हो जाती है। फिर इसका नहीं, कैसे टोन। अपनी या कंपनी आप बोलो, मैं तो वैसे ही काम कर रहा था जी, पढ़ाई के साथ साथ भी मेरा वैसे ही काम कर रहा था मैं। बट बोलो, आप उसको बस ये बोल दो कि भाई मेरे को था कि मैं अब यहाँ पे बैठ के यार अपना फुल सर्विस से अपना पढ़ाई करूँ ढंग से, और मेरे को था कि अब मैंने इस सर्विस में ही आना है। ठीक है सर, मतलब मैं स्टडी को ही फोकस करके बोल दूं कि मुझे और अच्छे से करनी थी स्टडी, इसलिए सर सुन। तो ये मत बोलो कि भाई मेरा वहाँ उनको नुकसान हो रहा था या मेरे को नुकसान हो रहा था, है ना। तो आप बोलो कि यार मैं साथ साथ, मैंने कहा कि अब इससे अच्छा है कि मैं अब एक बार बैठ के ढंग से पढ़ ही लूँ, बिकॉज कि बोलना मैं टारगेट तो अचीव कर ही लेता, या उसको ऐसे स्मूथली पुट करो कि मैं ऐसे टारगेट तो अचीव वैसे भी तब भी कर ही सकता था, बट एट द सेम टाइम आई फील कि इस अगर मैं पूरा फुल टाइम इसको तैयारी करता, मेरे को बस टाइम की कमी पड़ रही थी, प्रोडक्टिविटी का इशू नहीं था। टाइम भी कम। मैं 2 घंटे में भी उतना ही पढ़ रहा था, बहुत बढ़िया, बट मेरे को 4 घंटे में और ज्यादा पढ़ना था, यस। तो वो अच्छा एक इमेज थ्रो करेगा। ठीक है, और बाकी तो आई थिंक ठीक था। पंजाब वाला आपको मैंने बता दिया कि उसको ये थोड़ा करना, यस सर। कार्डर को किसी को हमने बेइज्जती नहीं करनी, सारे बढ़िया कार्डर हैं, हो सकता है आपको मिजोरम ही मिल जाए यार कल को, क्या पता, है ना। पता नहीं होता, हमारे बैच के रैंक 20 समथिंग थे, उनको सिक्किम मिल गया यार, तो अब वो सिक्किम में काम कर रहे हैं, तो ऐसे तो फिर वो, मतलब अगर आप नेगेटिव बोल दोगे वो बोलेंगे फिर इसको टॉप की 3 सर्विसेज में नहीं लेते, इसको कोई दूसरी दे देते हैं पोस्टल वोस्टल टाइप की, है ना, तो वो ही नहीं बात। और बाकी ठीक है यार, बाकी सही है, खुश रहो इंटरव्यू में, जैसे अभी आप खुश हो वैसे ही इंटरव्यू में भी स्माइल वाइल करते रहा करो, है ना, तो वो बढ़िया रहता है। और अब सर आप मॉक्स सर मॉक्स दिल्ली जाके देना ठीक रहेगा, मतलब प्रैक्टिस के लिए। और दे दो यार, 3 4 दे दो। जैसे सर आज फर्स्ट लिस्ट आई है 19 तक, 19 दिसंबर तक उन्होंने बुलाया है बहुतों को, उसमें मेरा नाम तो नहीं है, लेकिन तब तक मुझे अगर जाके देना हो तो इसी टाइम में जाके दे सकता नहीं, हूँ, क्योंकि क्या पता अगले लिस्ट में मेरी नाम आ जाए। किसने बुलाया 19 तक? सर आज लिस्ट आई है सर। जी, तो आपका नहीं आया ना अभी इंटरव्यू? तो नहीं नहीं, वही मैं सोच रहा हूँ अगली बार जब आएगा तो क्या पता, इसलिए अभी टाइम है मेरे पास जाने के लिए। हाँ, मतलब ऐसा कर लो, स्पेस करना मॉक्स अपने, ऐसे मत करना कि एक महीना जाके दिल्ली बस के, वैसे तो आप जी। रहे तो हो सकता है आपको एक बार जब जाओ तो आपको हफ्ता लगाना ही पड़े, जी। है ना। तो आप ऐसा करना कि हफ्ते में अपने 2 मॉक्स रख लो, या 3 रख लो। मैंने तो एक दिन में भी दिए थे, क्योंकि मैं एक दिन के लिए ही चला चला जाता था चंडीगढ़ से दिल्ली, तो आप ऐसे स्पेस करना अपने मॉक्स को, है ना, बहुत ज्यादा भी नहीं देने, 4 बहुत है मैक्सिमम, फिर बाकी एक आधा वन ऑन वन आप कहीं और भी चाहे कर लेना, और
बीच में जाके सर जैसे 2-3 दिन के लिए जाके दिल्ली फिर सारे मॉक्स दे के आ जाऊंगा वापस ऐसा कुछ। इतना भी वो मत करना, एक बार पहले चले जाओ, अभी जैसे जाओगे 19 से पहले कभी, फिर 15-16 को चले जाना। तब तक वैसे लिस्ट आ ही जाएगी, अगलों वालों की भी पहले ही आ जाएगी उससे। जी। एंड फिर अपने इंटरव्यू से 10 दिन पहले जाना। एंडिंग हमेशा अच्छे मौके पे करना, जो मौका अच्छा हो जाए वहां पे एंड कर देना कि चल ठीक। कॉन्फिडेंस ही असली चीज है। अभी जैसे मैंने तो बहुत ज्यादा प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछे ना, प्रोब कर करके, जान जान के, वो नहीं इतना पूछते। जो ये केस स्टडी थी स्कूल हॉस्पिटल रोड वाली, ये मेरे से मेरे यूपीएससी इंटरव्यू में पूछा था। जी सर। ठीक है, तो उसमें मैंने स्कूल बोला था, तो उन्होंने मेरे को यही पूछा था कि भाई रोड नहीं है तो सामान कैसे लेके जाओगे स्कूल बनाने के लिए। ठीक है। मैंने कहा यस। "वो लोग रहते हैं, जैसे लोगों के घर बने हैं वैसे ही स्कूल भी बन जाएगा। और मैंने कहा स्कूल के लिए कौन सा बिल्डिंग की जरूरत है, हमें तो टीचर की जरूरत है। यस। तो ऐसे करके तो उसने बोला दैट इज योर ओपिनियन, आई रिस्पेक्टेड। कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते वो। अगर आप मॉक्स यूट्यूब पे देखोगे ना, तो उसमें तो बड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं असल में। जी आप देखो कोई दृष्टि दृष्टि के मॉक होते हैं, वो बड़ा कुछ बोलते हैं, ऐसा नहीं होगा। सर। वो तो जान के, टीआरपी भी एक चीज होती है। यस है, वो तो बेचना है, सेल करना। हाँ, तो फाइनली वो बड़े प्यार से बोलेंगे, तो वो भी 5 इंसान ही है, कोई घबराना मत वहां से। दे आर वेरी प्लेजेंट। अगर आपको नहीं आता आप बोल दो सॉरी सर अभी नहीं, आई कैन नॉट रिकलेक्ट इट राइट नाउ, आई विल गो एंड रीड अबाउट इट। वो बोलेंगे ओके आकाश, नेक्स्ट। सीधा। और जो नहीं आता ना, इमिडिएटली शट डाउन कर देना क्वेश्चन को कि भाई नहीं आता। और अपने आंसर्स को देने से पहले गैप ले लेना, चाहे 10 सेकंड का पॉज ले लो, कलेक्ट कर लो थॉट को, फिर उसके बाद प्रोसीड करना। सर एक क्वेश्चन और सर, जैसे वाई सिविल सर्विस अगर उन्होंने मुझसे पहले स्टार्टिंग में ही पूछ दिया, सर एक बैलेंस्ड आंसर क्या होता है? जैसे सब बोलते हैं पब्लिक सर्विस या एग्जीक्यूशन पावर होती है यहाँ, या ये मेरा बचपन से ड्रीम था सर, मतलब बैलेंस्ड आंसर क्या हो सकता ही करनी थी, फिर वो बोलेंगे इंजीनियरिंग क्यों करी यार। है? जी सर। नहीं बोलना, वो भी गलत था। जैसे आपने बस इसमें एंड में अपने 3 वर्ड्स याद रखने हैं, ब्रॉड, डाइवर्स एंड डायनेमिक। डाइवर्स, डायनेमिक एंड ब्रॉड, ठीक है सर। ठीक है, ये ब्रॉड, डाइवर्स एंड डायनेमिक रखोगे ना, इसके बेसिस पे अपना आंसर बिल्ड कर लो। बोलो कि सर इंजीनियरिंग बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, मेरे को तो बहुत मजा भी आ रहा था, आई वाज वर्किंग इन एलएनटी, आई वाज एंजॉयिंग इट। बट सर एक टाइम पे मेरे को रियलाइज हुआ कि ये मेरा जो स्कोप है यहाँ पे वो वर्क का थोड़ा लिमिटेड है। आई एम नॉट एबल टू, आई एम सर्टेनली क्रिएटिंग अ डिफरेंस एंड आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू पीपल, बट एट द सेम टाइम जितने लेवल का कंट्रीब्यूशन मैं करना चाहता हूँ, या जितने लोगों को मैं रीच आउट करना चाहता हूँ, या जो अपने सबसे ज्यादा गांव के लोग हैं या उनको मैं अगर रीच आउट करना चाहता हूँ, तो इस मीडियम से मैं नहीं कर पा रहा था। है ना, तो मैंने सिर्फ सोचा कि अगर मैं सिविल सर्विसेज में आऊंगा तो आई वुड बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन अ मोर ब्रॉड, डाइवर्स एंड डायनामिक स्फीयर। ठीक है। है ना, तो इसके ऊपर बिल्डअप करो। कोई अपना डॉट बीच में डालना है तो डाल दो, बट इस लाइंस पे आपका आंसर होना चाहिए। और सर करंट अफेयर्स प्रिपेयर जो, करंट अफेयर्स में सर ओपिनियन अपने बनाओ, क्योंकि पॉइंट्स तो ज़्यादातर पता ही रहते हैं ओपिनियन, ऐसे। ओपिनियन तो आपने कभी अपना, फिर भी अगेन सिंगल साइड तो बहुत ज्यादा देना भी नहीं है। ठीक है। हमेशा मीडियम, पहले प्रोज बता दो फिर कॉन्स बता दो। अगर कोई चीज है या कोई स्कीम है या कोई पॉलिसी है, पॉलिसी सरकार की तो तारीफ ही करनी है। हम्म। बस ये बोल देना एट द सेम टाइम सर देर आर अ फ्यू challenges which are this and I think sir we can work on them and improve our challenges। कोई ओपिनियन भी है कि भाई कंट्रीज का भी, कि इसके बीच में वॉर है, क्या हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, प्रोज कॉन्स दोनों बता देना। बट एक जनरली व्यू होता है ना जो ज्यादा एक्सेप्टेड सा होता है, कि इसराइल पैलेस्टीन में, अगर इंडिया पैलेस्टीन की तरफ है तो थोड़ा उस तरफ का आंसर देना है हमने। मतलब ऐसे करके जो भी ग्लोबल व्यू है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, उसको हमने पॉजिटिव रखना है। अगर इंडिया के हेल्थ सिस्टम के बारे में है, तो बिल्कुल ही हमने बेइज्जती से नहीं करनी। बोलो कि इंडिया की सिर्फ पॉपुलेशन सबसे लार्जेस्ट है, हेल्थ का जो मतलब बर्डन है वो भी सबसे ज्यादा है, उसके बाद जी वी बीन डूइंग गुड एंड रिसेंट ईयर्स में भी हम बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। पर एट द सेम टाइम सर कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हैं ये और ये। फिर ऐसे पॉजिटिव से बिल्ड करके, हमेशा लिमिटेड चैलेंजेस, हमेशा हमने अपना पर्सपेक्टिव जैसे मेंस में भी करते हैं ना, कि हम लोग चैलेंजेस सोल्यूशन ज्यादा बताते हैं, चैलेंजेस कम बताते हैं, वैसे ही इसमें भी चैलेंजेस कम बताएंगे, सोल्यूशन ज्यादा बताएंगे। अगर तो चैलेंजेस ही पूछनी है तो फिर आप उन पे मेंटेन रखना। है ना। और जैसे आपके बिहार का है, उसको तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो यार। जी सर। सारे क्या क्या उसमें दिक्कतें हैं, बढ़िया है। ठीक है, पॉलिटिक्स वगैरह का कोई क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा।
सर जैसे अभी रिसेंट बिहार में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस पे मैं वही कहने वाला था, जरूर क्वेश्चन आएंगे। जी सर। आपसे पूछेंगे कि भाई क्या फ्री और फेयर थे, आप कैसे सेटल कर सकते हो, है ना, आप यस सर, बहुत इश्यूज हुई है सर। कैप्चरिंग हुई थी क्या। तो आप उसमें बोल देना कि मतलब थोड़ा पॉजिटिव ही रखना। जी सर, समझ गया, पॉजिटिव से स्टार्ट करना है फिर बाद में। नेगेटिव तक आना है। और ठीक है कब सर। इसमें वो मत करना, क्या कहते हैं, जैसे बिहार के इलेक्शंस के बारे में ही आपसे पूछ लिया, कोई मतलब दूर दूर तक भी किसी पार्टी का कुछ नहीं, और कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई आपको उसमें 100% एथिकल ही शो करना है, चाहे आप प्रैक्टिकली कुछ और भी सोचते हो कई बार, है ना। मतलब कई बार वो बोलेंगे जी एमएलए ने कह दिया आपको कि भाई आपने एनओसी किसी को नहीं देनी, दूसरी पार्टी वालों को, और आपके हाथ में ही है, वरना एमएलए कहता है भाई बदली करा दूंगा, आपका जीना मुश्किल कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो प्रैक्टिकली अगर आप सोचो भी चल कोई नहीं, थोड़ा उसका कर देंगे, थोड़ा उसका कर देंगे, थोड़ा उसका कर देंगे, बट वहां पे बोलना नहीं जी नहीं सर पोस्टिंग कर देंगे, क्या हो गया, मेरे को जैसे एथिक्स में लिखते हैं सर, ठीक है। बस बिल्कुल वैसे ही चलना है। क्योंकि उनको भी पता है कि फील्ड में आके जो प्रैक्टिकली है वो तो आप कर ही दोगे, बट अगर यस। आप पहुंचोगे सर्विस में ना, क्योंकि एथिकैलिटी जो है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो अगर जो बंदा यहाँ पहुंचेगा वो तो यहाँ पे बड़ी जल्दी पहुंच जाएगा, बट यहाँ वाला धीरे धीरे पहुंचेगा। तो आपने 100% एथिकली वहां पे इंटरव्यू में चलना है, चाहे वो सोचे कि यार ये तो पागल है, बट नहीं भाई ऐसे ही है। क्योंकि वो तो उस हिसाब से देख रहे हैं कि उनको तो बंदा चाहिए बिल्कुल ही वैसा, कि भाई जो कुछ ना करे, चाहे एंड में 10 टाइम विनिंग एमएलए है उसके सामने, चाहे आप कुछ ना भी करो, बट आपने इंटरव्यू में अपना पूरा मेंटेन रखना है कि नहीं जी नहीं हम तो जी अड़ जाएंगे, बूथ कैप्चरिंग नहीं होने देंगे, मतलब जो भी है ऐसा रखना पूरा स्टांस, है ना। रूल ऑफ लॉ हमेशा से चाहे कहीं भी तो फ्लो हमेशा कहीं कहीं पे मतलब ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट भी ले आना, जहाँ पे आपको लगता है हो। सोशल वर्ल्ड है, उसमें बोल देना सर रूल ऑफ लॉ को, फिर हम रूल ऑफ लॉ तो बना ही लोगों के लिए है, तो हमें थोड़ा सा सोशल भी एस्पेक्ट देखना पड़ेगा, तो ऐसे करके, है ना। तो करी चलो, अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड यूपीएससी पे मॉक इंटरव्यूज देख लेना यूट्यूब पे, दोज ठीक हेल्प, है। मैकेनिकल इंजीनियर या फिर बिहार, है ना, वो दोनों चीजें आप अच्छे से देख। तो ये सारे बिहार बैकग्राउंड के इंटरव्यूज का, सारे तो नहीं, जो आपको लगता है कि भैया ट्रांसक्रिप्ट है सर, हाँ, उनको उनसे वो चैट जीपीटी से करवा लिया है सर, देखता ट्रांसक्रिप्ट्स ना भी सही, यूट्यूब पे भी देखना। अभी टाइम है देखने का, जो मेंस प्री से पहले देखते हैं वो बिल्कुल यूजलेस बात है। टाइम ठीक है अभी, सर। है ना, अभी अच्छे से देख लो, क्योंकि फिर ऑन द स्पॉट मौके पे पता चलता है। और सोचो यार अगर मैं होता तो मैं क्या बोलता, चाहे किसी क्वेश्चन के बाद पॉज भी कर लो 1 सेकंड के लिए, और फिर अपना आंसर बोल दो, फिर उसके बाद उसका सुन लो, आपके 2 पॉइंट उसके 2 पॉइंट ऐड होके आपके बढ़िया पॉइंट बन जाएगा। एक रजिस्टर बनाओ, उसके अंदर जो भी आपके बैकग्राउंड, या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग या बिहार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लिख लो, फिर उसके नीचे अपना आंसर और उनका आंसर दोनों ऐड कर दो, फिर आपका आंसर बन गया। फिर आप एंड में चाहे उसको रिवाइज करते रहना, है ना, कैसे कैसे है। एनआईटी जलंधर से कोई भाई की प्रोमिनेंट फिगर्स आए हो, कुछ आए हो, ऐसी ऐसी चीजें भी सारी आप स्टडी करते रहना, नोट्स बनाने शुरू कर दो अभी से इंटरव्यू के, जी सर, बनाता यूजफुल रहेंगे। बाकी और कोई डाउट आकाश? हूँ। नहीं सर। कोई नहीं, बाकी यार खींचते चलो, बहुत अच्छा कर रहे हो, है ना, ये चीजें इनका ध्यान रखोगे बढ़िया हो जाएगा, वहाँ बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस होगा आपका, बस टेंशन में मत जाना। जी सर, मैं फियर वाला फैक्टर हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बस वही है, वो अपने आप हट जाएगा धीरे धीरे करके तो बाय। सर आज मैं सोच रहा था, जैसे मुझे फियर क्यों हो रहा है, तो पता लगा कि कुछ कारण है नहीं फियर करने का, तो कम हो गया फिर। हाँ वो भी है ना यार, क्योंकि वहां पे भी अल्टीमेटली देखो डर तो लगेगा ही यार, जब आप उस रूम में बैठोगे ना गोल से टेबल पे, सारे आसपास बात ही नहीं कर रहे, किसी से अखबार पढ़ रहे हैं, तो डर लगेगा। फिर पैनल के रूम के बाहर जब वेट करोगे तब भी डर लगेगा। बट आप ये सोचना यार क्या ही हो जाएगा, वर्स्ट केस सिनेरियो में 150 दे देंगे, बेस्ट केस में 200 दे देंगे, कोई यस बात। कॉन्फिडेंस से जितना जाओगे उतना अच्छा रहेगा। वो भी प्यार से, बस लाइक ट्रीटेड लाइक अ क्वेश्चन आंसर थिंग ओनली, ये मत सोचना कि भाई मैं यूपीएससी का इंटरव्यू देने आ गया हूँ कि बड़ी वो है, नहीं कोई बात नहीं। जो पूछा है उसका मन में प्रैक्टिकली सवाल का जवाब सोचो एंड दे दो उसको बस। नहीं आता तो चाहे लाइन में 4 क्वेश्चन नहीं भी आते ना, तब भी चारों को आई डोंट नो बोल देना, है ना। तो ऐसे एंड बी ट्रुथफुल, जहाँ पे भी आपको लगता है ना कि भाई प्रैक्टिकल बात भी है, कि जैसे मेरे को, मैंने सीडीएस का भी एग्जाम दे दिया था, है ना, तो वो कहते हैं मेरे को कि भाई आपने सीडीएस का क्यों दे दिया एग्जाम, ये वो। मैंने कहा सर कि क्वेश्चंस जो है सीडीएस के वो यूपीएससी में कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, या दोनों यूपीएससी कराते तो फायदा हो जाता, तो मैंने दे दिया, तो ठीक है ना। यस।
हम लोग ऐसे ना ना बोले कि नहीं नहीं मेरे को सीडीएस में था, अभी मेरे को तो फौजी ही बनना था, फिर मैंने कहा कि पर नहीं यूपीएससी ज्यादा ब्रॉड स्फीयर है तो इधर आ गए। नहीं, हमने झूठ बोलना ही नहीं है ठीक है यस। ना, क्योंकि सर्विस में भी वो चाहते हैं कि आप थोड़ा समझदारी से प्रैक्टिकली काम भी करो, है ना। तो बी ट्रूथफुल, बाकी सही कर रहे हो यार आकाश, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। होता है क्लियर तो बताना यार। बिल्कुल सर। ओके थैंक यू आकाश। फॉर योर टाइम सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मनीषा मैम। चलो फिर देन आई विल टेक योर लीव। गुड नाइट ठीक है सर। सर। ओके।